السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم نے کل کی تاریخ میں زکوٰۃ کے متعلق ایک 12 منٹ کا ویڈیو چھوڑا تھا، لیکن کسی ریلی اور جلوس اور دیگر بیک گراؤنڈ زیادہ گانے کی آواز آنے کی وجہ سے، میوزک کی آواز آنے کی وجہ سے ہم نے ویڈیو کو وہیں پر ترک کر دیا تھا. لیکن اب میں دوسرا ایپیسوڈ کہہ لیجئے یا دوسرا پارٹ کہہ لیجئے زکوٰۃ کا میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں. تو آپ تمامی حضرات اس ویڈیو پر بنے رہیں، اور اگر پہلا پارٹ اگر آپ دیکھنے کے خواہش مند ہے تو پہلا پارٹ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں پر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلی بات، میں جہاں تک میں کل جو بات چھوڑا وہاں سے میں لے کر کے چلتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے اور نہ دینے پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا حکم آیا ہے، کہ زکوٰۃ دینے والوں کا کیا مرتبہ ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اوپر کیا وعیدیں آئی ہوئی ہے. تو میں آج وہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. تو زکوٰۃ کا انکار کرنا سب سے پہلی بات یہ کفر ہے، چونکہ اراکین اسلام میں یہ جو اسلام کا جو رکن ہے، پہلا توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اراکین اسلام ہے. ان میں سے کسی بھی چیز کا بندہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے بلا کسی ثبوت، بلا کسی کراہت کے. میرے عزیز، تو زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے. اس کا دلیل کیا ہے؟ تو سورہ سجدہ آیت نمبر 6 اور 7 کا آپ تلاوت کریں، آپ کو معلوم چل جائے گا. اس کے بعد کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 آپ جا کر کے تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے. عزیزو، آج دیکھا جا سکتا ہے کہ آج ہمارے اوپر کس طرح قحط سالی مسلط ہو چکی ہے. لوگ بڑی محنت و مشقت بھی کرتے ہیں اور خون اور پسینے سے سینچ کر کے کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن جس قدر پہلے ہم کھیتی باڑی سے ہم جو غلات جو ہم وصول کر لیتے تھے، آج وہ نہیں ہو پا رہا ہے. کیونکہ آج ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. رب کو ناراض کرنے کا کہیں نہ کہیں ہم کام کرتے ہیں. میرے عزیز، اس کے بعد کہا گیا کہ زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، یہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتی ہے. سب یہ بیکار ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے، جو انسان بڑا اپنے آپ کو متقی بنا پھرتا ہے، نمازی بنا پھرتا ہے، حج بنا پھرتا ہے، پیسوں کی دھوس میں تو اس نے جا کر کے حج کر لیا، لیکن اب انہی پیسوں کا اگر ان سے کہا جائے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے، تو پھر اس کی نانی مرنے لگتی ہے، سامت آنے لگتی ہے. میرے عزیز، یہ خدا کا مال ہے، خدا کا دیا ہوا ہے. اگر خدا کا حکم ہے کہ اس میں 2.5% نکال دو تو کیا برائی ہے؟ یہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کی ہے. وہ چاہے تو جان کو جہاں چاہے میرا خرچ کروا دے، چاہے تو میرے مال کو جہاں چاہے خرچ کروا دے. ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. جہاں وہ کہے گا وہاں ہم خرچ کریں گے. تو خرچ کرنے میں کیا برائی ہے؟ تو اگر کوئی بندہ لاکھ متقی پرہیزگار ہے تو دیکھا جائے کہ جو انسان اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، جو اہل ثروت ہے، مالک نصاب حضرات ہے، ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی قبول نہیں ہوتی ہے، حج قبول نہیں ہوتی ہے. میرا عزیز، آیت نمبر 277 سورہ بقرہ. تو میرے عزیز، آپ جا کر یہ سب میں نے قرآن سے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو سکے، آپ ان باتوں پر یقین کر سکے اور پھر اپنے اعمال کو آپ درست کر سکے. اس کے بعد کہا گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ ہے. یہ فضیلت ہے. جو انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، ان کی تمام گناہیں جو ہو چکی ہے ان کا کفارہ کا کام کرتی ہے، اور ان کے درجات کو بھی بلند کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو کون انسان نہیں ہے جو چاہتا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات بلند کیے جائے، ان کے گناہ مٹائے جائیں. تو گناہوں کا کفارہ بھی ہے میرے عزیز، اور بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند ہونے کا زکوٰۃ. میرے عزیز، اور زکوٰۃ کے حکم کے متعلق میں یہاں سے بات کو اپنی تبدیل کر رہا ہوں، چینج کر رہا ہوں. کہا گیا کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو یا عاقل ہو یا بالغ ہو، ہر انسان کے اوپر جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ فرض ہے. جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے. اس کے بعد اگر سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال، ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا. اب کوئی انسان اگر
चोरी करके लाया, डकैती करके लाया, रहजनी करके लाया, बैंक लूट कर लाया, किसी का हड़प कर लाया, और वो जो है तकरीर सुन करके या फिर मेरे ही वीडियो देख करके अगर वो इंसान ज़कात निकालने का अगर वो ख्वाहिशमंद भी हो जाए तो मेरे अजीज ऐसे मालों का कोई ज़कात नहीं है जो पहले ही वो माल हमारे ऊपर हराम हो चुकी हुई है। वो भला चोरी का माल हमारे लिए कहाँ से जायज़ हो सकती है, डकैती का माल हमारे लिए कहाँ से जायज़ हो सकती है। जब हमारे लिए जायज़ नहीं तो फिर खुदा के लिए जायज़ कैसे हो सकता है मेरे अजीज। तो सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दीगर हराम से जो कमाया हुआ माल है वो उन तमाम मालों से ज़कात देना कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हलाल कमाई से दी गई ज़कात काबिल कबूल है और फिर गुनाहों का कफ़ारा भी है। मेरे अजीज, ज़कात कितनी चीज़ों पर देनी चाहिए, ज़कात कितनी चीज़ों पर है वो आप सुनते चले। तो पहला है कि सोना और चांदी, पहला सोना और चांदी, इस पर ज़कात फ़र्ज है। उसके अलावा ज़मीन की पैदावार, जिसके पास 1 बिग्गा है, 2 बिग्गा है, 3 बिग्गा है, 4 बिग्गा है, उसे गेहूं की उपजनी होती है, धान की उपजनी होती है, उससे बहुत सारे गल्लात निकलते हैं, तो मेरे अजीज़ों उन पर ज़कात फ़र्ज है। अब ये और बात है कि लोग अदा नहीं करते हैं तो फिर उनकी नहूसत उनके ऊपर जब पड़ती है तब वो फिर हाय हाय करते हैं कि हम इतनी मेहनत किया लेकिन हमारे खेतों से उपजनी नहीं हो पाई है। आप ज़कात अदा कीजिए, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान होगा और फिर आपके उसी ज़मीन से देखेंगे कितनी खूबसूरत किस्म की गल्लात आपको नजर आएंगे। तो मेरे अजीज, आप ज़कात अदा कीजिए। उसके बाद माल तिजारत, जो हम बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, उन मालों के ऊपर जो पैसे आते हैं, जो हमें मुनाफा मिलता है, तो उससे हम ज़कात हम अदा करते हैं। मेरे अजीज, ये सब बातें मैंने पिछली वीडियो में भी हमने बयान किया है, लेकिन तजदीद के लिए मैं यहाँ पर भी बयान कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात गहरी तौर से समझ में आ जाए। उसके अलावा जानवर बमाना ये हुआ कि कोई इंसान 20 गाय या 20 भैंसे, 40 भैंसे इस तरह करके जो खटाल पालते हैं, वो जानवर जिससे बिजनेस के लिए रखते हैं, जैसे उसकी दूध को मार्केटों में सप्लाई किया जाता है, उनको फिर बेचा जाता है, उससे पैसे कमाए जाते हैं। तो इन जानवरों को जो हम खटाल के तौर पर जो रखते हैं और उससे जो पैसा और आमदनी मुझे मिलता है उस पर ज़कात फ़र्ज है। कोई इंसान अगर ज़कात अदा नहीं करता है तो वह सख्त गुनाहगार है, अल्लाह की बारगाह में उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी मेरे अजीज़। और अब यहाँ से हर एक चीज़ का मैं डिस्टिनेशन बताने के लिए जा रहा हूँ कि सोना है तो कितने पर, चांदी है तो कितने पर, जानवर जैसे बैल भैंस है तो कितने पर, माल तिजारत का क्या हुक्म है, उसके अलावा क्या कहते हैं ज़मीन की पैदावार पर क्या हुक्म है। मैं इन तमाम चीज़ों पर बितफ़सील गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप तमाम बातों को ज़हन नशी करें और सुनते हुए चले। मेरे अजीज़, सोने की ज़कात का हुक्म क्या है? तो सोने का ज़कात का हुक्म ये है कि 87 ग्राम यानी 7.5 तोले सोने पर ज़कात वाजिब किया गया है। हदीस नंबर 1448 इब्न माजा की यह हदीस है। उसके अलावा कहा सोना महफूज हो या इस्तेमाल में, बहुत सारे लोग इस्तेमाल में लाते हैं, बहुत सारे लोग अपने तिजोरी में बंद रखते हैं, अपने किवाड़ में, वो क्या कहते हैं कि गोदरेज में बंद रखते हैं और अलमारियों में बंद रखते हैं। तो बंद रखने से कुछ नहीं होता है मेरे अजीज, उससे कुछ नहीं होता है। आप अगर अपने जेवर को अगर अपने पास रखे हो या इस्तेमाल में लाए हो, हर सूरत में आपके ऊपर ज़कात सोने और चांदी के ऊपर आपके ऊपर फ़र्ज होता है, आप उसकी ज़कात अदा कीजिएगा मेरे अजीज। उसके अलावा अब चांदी के ज़कात का हुक्म क्या है? तो चांदी 612 ग्राम यानी 52.5 तोले चांदी पर ज़कात वाजिब है, 52.5 तोले, और उसका क्या है वजन हमारे मार्केटों में 612 ग्राम मेरे अजीज। तो इस पर हमें ज़कात देना वाजिब हो जाता है। ज़कात के शरअ क्या है? ज़कात की 2.5% हमें अदा करनी है। मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली, अब यहाँ से ज़मीन के पैदावार पर ज़कात का क्या हुक्म है मैं वो आप बताने जा रहा हूँ। तो ज़मीन के पैदावार पर मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर 20वां हिस्सा देना होगा, 20वां हिस्सा देना होगा, वरना कुदरती ज़राए से सैराब होने वाली पैदावार पर शरह ज़कात 10वां हिस्सा है मेरे अजीज़। अगर आपने अपने पैसों से खेतों को सैराब किया है, पानी पटाया है, खाद डाली है, इन तमाम जो आपके जो पैसे लगे हैं और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो आपकी पैदावार ज़मीन पर हुई है,
تو जा कर के आप 20वां हिस्सा अदा करेंगे। लेकिन अगर कुदरती पानी जैसे बारिशों से आपका खेत सैराब हुआ है और उसके जरिए से आपकी खेती अच्छी हुई है तो फिर आपको 10वां हिस्सा अदा करना होगा। और देखिए इसके लिए सही बुखारी शरीफ किताब ज़कात, इस ज़मीन वाले अफराद जैसे गंदुम, मकई, चावल, बाजरा, आलू, सूरजमुखी, कपास, गन्ना और दीगर किस्म के पैदावार से ज़कात यानी अश्र 20वां हिस्सा हर पैदावार से निकाले। सही बुखारी शरीफ किताब ज़कात। उसके अलावा अब ऊँटों की ज़कात, जानवरों के ऊपर अब मैं आ रहा हूँ, तो अब ऊँटों की ज़कात का हुक्म क्या है? तो 5 ऊँटों की ज़कात, 1 बकरी और 10 ऊँटों की ज़कात, 2 बकरियां हैं, 5 से कम ऊँटों पर ज़कात वाजिब नहीं है। किसी के पास अगर 5 ऊँटें हैं तो उसके लिए 1 बकरी ज़कात के तौर पर या 1 बकरी की कीमत ज़कात के तौर पर अदा करनी होगी। और अगर किसी के पास 10 ऊँटें हैं तो फिर 2 बकरियां या फिर 2 बकरियों की कीमत उन्हें ज़कात के लिए अदा करनी होंगी। मेरे अजीज, सही बुखारी किताब ज़कात आप जाकर के मुताला कर सकते हैं। भैंसों और गायों की ज़कात के बारे में क्या हुक्म है? तो 30 गायों पर 1 बकरी ज़कात है जो देना पड़ेगा। आप जिसके पास 30 गाय है बिजनेस के लिए जो रख रखा है तो फिर उस इंसान के लिए 1 बकरी या फिर उसकी कीमत उसे ज़कात के लिए अदा करनी होगी। 40 गाय है तो फिर उसे 2 साल से बड़ा बछड़ा ज़कात देना पड़ेगा या फिर 2 साल से बड़ा बछड़े की कीमत उसे ज़कात के तौर पर अदा करनी होगी, तब जाकर के उसका ज़कात अदा होगा। आप देखें इसके हवाले के लिए तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 509 जिल्द नंबर 1। उसके अलावा अब जाकर के भेड़ और बकरियों के ऊपर ज़कात का क्या हुक्म है? तो भेड़ और बकरियों के ऊपर ज़कात का ये हुक्म है कि 40 से 120 भेड़, 40 से लेकर के 120 भेड़ बकरियों पर अगर किसी इंसान का इतना रेवड़ की तादाद में अगर भेड़ हो या बकरी हो तो फिर उस इंसान को 1 बकरी ज़कात के लिए अदा करना होगा। कितना मेरा रब मेहरबानी के देखिए कि अगर किसी के पास 40 बकरियां हैं या 40 भेड़ है, वो भले तिजारत के लिए रख रखा हो, और 40 भेड़ और बकरी से लेकर के 120 भेड़ बकरियों की तादाद तक उस इंसान को 1 ही बकरी ज़कात के लिए अदा करनी है या फिर 1 बकरी की कीमत उसे ज़कात के लिए अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा 120 से लेकर 200 तक अगर किसी के पास भेड़ और बकरियां हैं तो फिर उसे 2 बकरियों का ज़कात अदा करना होगा या फिर 2 बकरियों का रकम वो ज़कात के लिए वो निकाल दे। सही बुखारी शरीफ किताब ज़कात। किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात है क्या है नहीं है? तो मेरे अजीज, तो किराए पर दिए हुए मकान पर ज़कात नहीं है, लेकिन अगर उसका किराया साल भर में जमा होता रहे, जो निसाब तक पहुंच जाए और उस पर साल भी गुजर जाए तो फिर उस किराए पर ज़कात वाजिब है। उसके मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने इसकी मुकम्मल बातें में बता दिया था कि अगर किसी के पास 1 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंगें हैं और एक रहायश का मकान है तो रहायश के मकान पर कोई ज़कात नहीं है। लेकिन अगर 1-2 बिल्डिंग कई शहरों में है तो वहाँ से जो किराए निकलते हैं, जो किराएदार वहाँ पर रहता है, तो उस बिल्डिंगों पर ज़कात नहीं है, लेकिन किराया जो निकलता है उस पर ज़कात हमें अदा करनी होगी। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बात करते हैं गाड़ियों पर ज़कात कैसा है। तो मैंने पिछले वीडियो में इस बारे में भी बयान कर दिया था, लेकिन यहां पर भी तफसीली बातें सुन जाइए। किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं है, बल्कि उसके किराया पर है, वो भी उस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे और निसाब तक पहुंच जाए। अगर किराया साल भर तक जमा होता नहीं रहा या फिर वो जो किराया साल भर में निसाब तक नहीं पहुंच पाया तो फिर उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है मेरा अजीज। और घरेलू इस्तेमाल वाली जो गाड़ियां होती है, जो फैमिली के लिए जो लिया जाता है, अपने इस्तेमाल के लिए जो लिए जाते हैं, जानवरों की हिफाजती हथियार, मकान वगैरह पर ये सब जो चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों पर हमारा ज़कात वाजिब नहीं है। बकरी है, भेड़ है, बैल है, गाय है, हथियार है, वो तो हमारे वो इस्तेमाल के लिए है। गाड़ियाँ हैं वो हमारे इस्तेमाल के लिए है। तो इन इस्तेमाल
के चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं होता है। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब चलते हैं सामान तिजारत पर ज़कात का हुक्म क्या है, यानी कि तिजारती सामानों पर क्या ज़कात का हुक्म है, बितफ़सील इस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। दुकान किसी भी किस्म की हो, उसके सामान तिजारत पर ज़कात देना वाजिब है, यानी कि जो सामान दुकान के अंदर में है उससे जो हम बेच करके जो पैसे कमा रहे हैं, उन कमाए हुए पैसों पर हमारा ज़कात जो है वो वाजिब हो जाता है, हमें ज़कात अदा करनी होगी, क्योंकि उससे हमने फ़ायदा उठाना है, तो मेरे अजीज उस पर हम ज़कात अदा करेंगे। दुकान के तमाम माल का हिसाब करके उसका 40वां हिस्सा, अल्लाह अकबर, दुकान के सारे मालों का हम हिसाब करके उसका 40वां हिस्सा ज़कात दे, यानी दुकान की उस आमदनी पर ज़कात नहीं जो साथ साथ खर्च होती रहे, सिर्फ उस आमदनी पर ज़कात देना होगी जो बैंक वगैरह में पूरा साल पड़ी रहे और वो पैसे इतने हो के उनसे सारे 52 तोले चांदी खरीदी जा सके। मेरे अजीज, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं प्लॉट या जमीन पर ज़कात का हुक्म। जो प्लॉट मुनाफे हासिल करने के लिए खरीदा हो उस पर ज़कात अदा होगी, जाती इस्तेमाल के लिए खरीदा गया प्लॉट पर ज़कात अदा नहीं होगी। सुनने अबी दाऊद किताबु ज़कात हदीस नंबर 1562 जाकर के आप मुताला कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बात करते हैं किस किस को ज़कात दी जा सकती है, किस किस को ज़कात दी जा सकती है। तो माँ बाप और औलाद के सिवा सब ज़कात के मुस्तहिक है। मुसलमानों को ज़कात दी जा सकती है। वालिदैन और औलाद पर असल माल खर्च करे, ज़कात का माल नहीं खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा माँ बाप में दादा दादी, नाना नानी और औलाद में पोता पोती, नवासा नवासियाँ, ये सब शामिल हो जाते हैं। लिहाजा कोई इंसान ये ना सोचे कि बेटा को नहीं दे सकते हैं, पोता को दे सकते हैं, बेटी को नहीं दे सकते हैं, नवासी को दे सकते हैं, नवासा को दे सकते हैं, नहीं, औलादों में ये सारे के सारे शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा हम किसको दे सकते हैं, तो मसाकीन जो हाजतमंद है उसको दे। उसके अलावा गरीब को दे सकते हैं, ज़कात उसूल करने वालों को दे सकते हैं, जो मकरूज है, जो सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और कोई उसके कर्ज अदा करने वाला नहीं है, तो हम उसे भी दे सकते हैं। कैदी है तो उस कैदी को भी हम दे सकते हैं। मुजाहिदीन है उसे भी हम दे सकते हैं। मुसाफिर है उन्हें भी हम दे सकते हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 60 जाकर के आप तिलावत कर सकते हैं और इस मसले को आप समझ सकते हैं। तो सवाल क्या गया कि ज़कात के लग़वी माना क्या है वो बताइए। तो ज़कात का लग़वी माना यही होता है बढ़ोतरी के। ज़कात का लग़वी माना होता ही ये बढ़ोतरी के। अब जब रब ने ज़कात का माना ही ये रखा बढ़ोतरी और इजाफे का, तो यकीन मानिए कि आप जब ज़कात अदा करेंगे तो बढ़ोतरी ही होगी, आपका कभी उसमें घाटा नहीं हो सकता है, क्योंकि रब ने यह वादा लिया है। उसके अलावा कहा जाता है कि कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज हो जाती है। जब आप 7.5 तोला या उससे ज़्यादा हो तो हम पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह एक भाई ने सवाल किया था कि कितना माले तिजारत हो तो ज़कात फ़र्ज हो जाती है। तो उसका जवाब यह है कि उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सारी बातें आप तक पहुँच भी गई होंगी और आप सारी बातों को आप समझ चुके होंगे। लिहाजा मैं आप तमाम मुसलमानाने आलम से और खुसूसियत के साथ अपने कुर्ब व जवार और मेरे जानने वाले जितने भी मुसलमान भाई हैं, मेरे रफ़्क़ा हैं, मेरे चाहने वाले, उन तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपने मालों की हिफाजत कीजिए और अपने माल में से रब की रज़ामंदी की खातिर आप ज़कात अदा कीजिए, ताकि आपकी माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत अल्लाह तबारक व तआला खुद ले ले और उसके ज़रिए से आपकी माल में बढ़ोतरी भी अता कर दे और दोनों जहां की भलाई भी आपको अता कर दे। मेरा अजीज़, मेरा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि मेरी तमाम बातों को आप समझ चुके होंगे। तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।